next sum is like a bus covered 360 kilometers in 6 hours. If it traveled 1/4 of its usual speed, how much more time it will take to cover the same distance? So there are two, let us say A and B. The bus is covering this 360 kilometers in 6 hours, which means इसका initial जो speed है 360 upon 6, 60 kilometers per hour है. Now जो S2 कर दिया उसने, it reduced the speed by 1/4, which means 60 का 1/4 is 50 kilometers per hour. Then how much more time compared to this 6 hours it is going to take? So let us say the distance covered is same now in both the cases. The ratio of the speeds is 60 upon 15. That is 4:1. Which means अगर distance same है तो time का जो ratio है, जो पहले time लगता था और जो भी time लगेगा नया, वो 1/4 होगा. तो पहले 1 मतलब 6 hours लगता था, अब 4 लग रहा है मतलब 24 hours लगेगा. तो पहले से कितना ज़्यादा लगेगा? 18 hours ज़्यादा लगेगा. So sometimes people misunderstand this question and they keep on searching as 24 hours. लेकिन अगर suppose यहाँ 24 hours होता तो lot of people would have made a mistake by clicking the 24 hours. It is not here. They have not asked you what is the new time taken. They have asked you what is how much more time. तो कितना ज़्यादा है आप ऐसे भी कर सकते हो. 1 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3. 1 की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू 18. That is a better way of doing it. So 18 hours is the answer. Okay. A car takes 50 minutes to cover a certain distance at 54 kilometers per hour. If the speed is increased by 25%, then how much more longer it will take to cover 3/4 of the same distance? The speed is increased. So I really do not need 54 kilometers per hour ka speed, to be very frank in this case. So what I will do is, the distance is same. So let us suppose its initial speed. अच्छा, ratio में को कैसे निकालो? It is increased by 25%. So 25% in terms of fraction is 1/4, which means अगर initial speed 4 है तो नई speed 1 से बढ़ गई तो 5 हो गई. तो S1 upon S2 का जो रेशियो है वो 4/5 है. करेक्ट? विच मीन्स जो टाइम का रेशियो है वो 5/4 हो जाएगा. राइट? नाउ मेरे को 5 की वैल्यू दे रखी है बिकॉज इट इज इनिशियली व्हेन इट स्पीड वाज S1 इट यूज्ड टू टेक 15 मिनट्स. तो नया टाइम क्या होगा? 40 मिनट्स. करेक्ट? तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको अगर नया स्पीड में 40 मिनट्स हो गया, then how much longer it will take to cover 3/4 of the same distance? So let us say अभी इसका स्पीड ले लेते हैं. 54 किलोमीटर पर आवर था S1. बराबर है. और टाइम 50 मिनट्स था, विच मीन्स T1 was 50/60. So distance कितना हो जाएगा? This into this, that is 54 into 50 divided by 60. ये कट हो गया. 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है. So distance is 45 kilometers. Now I have to find out. अभी उसको 45 किलोमीटर्स नहीं, अभी उसको 3/4 ऑफ द सेम डिस्टेंस कवर करना है. सो 45 इंटू 3/4 किलोमीटर्स कवर करना है. और उसकी नई स्पीड क्या है? नई स्पीड उसकी 25% से, मतलब मेरे को 4 की वैल्यू 54 दे रखी थी, तो मेरे को 5 की वैल्यू, मतलब उसकी स्पीड जो नई है वो 25% से इंक्रीज हो गई ना, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/4 इंटू 54. तो यहां स्पीड ऐसे लिख लेते हैं. तो डिस्टेंस इतना है, स्पीड कितनी है? 5/4 इंटू 54. और अभी नई टाइम पूछी है तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा.
ये 9 6 जा, ये 9 5 जा, ये 5 5 कट जाएगा, ये t और ये 2. सो 2 इज एक्चुअली 1/t. तो t इज 1/2 आवर्स, तो t इज 30 मिनट्स. सो जब अब अगर उसे स्पीड 25% से इंक्रीज कर दी तो टाइम उसको 3/4 ऑफ द डिस्टेंस कवर करने के लिए 30 मिनट्स लगेगा. ठीक है, अंडरस्टूड. While traveling from office to home, girl's car got some problem. So she took 16 2/3% more time than usual to reach home. Her speed of the car in that case was what percentage less than usual speed? So here what I'm saying is कि टाइम दिया हुआ है, इनिशियल टाइम एंड न्यू टाइम दिया हुआ है. तो जो पहला जो टाइम लगता था वो अभी 16 2/3% मोर टाइम लगने लग गया. सो लेट अस टेक द फ्रैक्शन. 16 2/3% मीन्स हाउ मच? 1/6. दिस इज एक्चुअली 1/6. मतलब अगर पहले उसको टाइम 6 लगता था तो अभी उसको एक ज्यादा लगेगा, तो T2 कितना हो जाएगा? 7. तो T1/T2 का जो रेशियो है वो 6/7 है. मतलब उनका जो स्पीड का जो रेशियो हुआ होगा वो 7/6 हुआ होगा, बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस. अब पूछा है कि उसका जो हर स्पीड ऑफ द कार इन दैट केस व्हाट परसेंटेज लेस देन द यूजुअल स्पीड. तो उसका यूजुअल स्पीड कितना था? 7. और अब कितना हो गया? 6. कितने से कम हुआ? 1 से. कितने पे? 7 पे. तो 1/7 इज नथिंग बट 14.28%. सो 14.2/7% से उसका नया स्पीड डिक्रीज हो गया. दैट्स व्हाट दे हैव आस्क्ड अस. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव डन इन आवर परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस. इफ यू हैव टू गो एंड वॉच दोस वीडियोस. एंड दैट्स व्हाई एट ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो मैंने ये बताया था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने में अपने को काफ़ी सारे टॉपिक्स में काम आता है, स्पेशली डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग में, स्टैटिस्टिक्स में. ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, ऑल दिस एबिलिटीज आर वेरी नेसेसरी. ऑल दिस स्किल्स आर वेरी नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. तो अगर आप वो बेसिक चीज़ों में अगर स्ट्रांग नहीं हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे वीडियोस देखिए, और इन सब कॉन्सेप्ट्स में रेशियो को कैसे रीड करते हैं, परसेंटेजेस को कैसे रीड करते हैं, डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, all those things you have to understand so that they are useful in all the topics that you do and ace your entrance tests. I hope you enjoyed my time, distance and speed videos and lectures. If you have any queries, please contact me on my WhatsApp number. I'll be available there 24/7, and please do not forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you so much.